बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा ने मेरे तो आज हम आम इतवारों में 23वें इतवार की लितूरिया में शामिल हैं, जिसमें आज की इतरातें बताती है यीशु मसीह के शागिर्द होने के तकाजे क्या। जो यीशु मसीह का शागिर्द होना चाहता है उसे क्या कुछ करना है और क्या कुछ अपनाना है, क्या कुछ तर्क करना है। इसलिए जो भी खुदा की दावत को कबूल करते हैं, उसके पीछे चलने का वादा करते हैं, उनको इन बातों पर अमल करने की जरूरत है ताकि सच्चे और खालिस पैरोकार और शागिर्द ठहर सकें। तो आज की बात में पर दुआ करेंगे यूनुस और नुसरत के खानदान के लिए, इसके साथ साथ सनी और आसिया के खानदान के लिए। खुदा इनकी शुक्रगुजारियाँ कबूल करे और इन खानदानों को बरकत दे। इसके साथ साथ आमर और शकीर के कारोबार के लिए शुक्रगुजारी की दुआ कि खुदा इनको बरकत दे, इन कारोबार में मजीद बरकत डाले ताकि ये खुदावंद पर भरोसा रखते हुए नेक कमाई करते हुए अपने घरानों की हिफाजत कर सके। नजीरा सरदार की रूह के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जो खुदावंद में सो चुकी है कि खुदा उसे हमेशा का राम दा फरमाए। सलीम खान बादल के खानदान के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इस खानदान को बरकत दे और इनकी शुक्रगुजारियाँ कबूल करे। जफर भट्टी के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जो कि बीमार है, खुदा पर तस्वीरात बढ़ाए, रुचुए और सेहत कामला अता फरमाए। साथ साथ शाहिद अफजल के खानदान के लिए शुक्रगुजारी की दुआ और साथ साथ कारोबार में खुदावंद इनको बरकत दे। दुआएं बात को दुआएं और अपनी सारी गलतियों को मैं काले मुझे खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने बातों और कामों नींद गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काले मुझे खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा जिंदगी अता करे। सुन ले बख्श दे तुम्हें सुन ले सीधे हमारा नरो सीधे हमारा नरो दुनिया कलावानी बख्श दे बख्श दे
اے پیارے باپ خدا، تو ہی مر جات کا بانی ہے، تو ہی ہمیں اپنے فرزند بنا لیتا ہے۔ مہربانی سے اپنے پیارے لوگوں پر توجہ کر تاکہ ہم مسیح پر ایمان لا کر سچی آزادی اور دائمی میراث پائیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے میں تک زندہ رہتا اور سرفرست کرتا ہے۔ سمجھ سکتا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت حکمت کی کتاب 9واں باب 13ویں سے 18ویں آیت۔ کون سا انسان خدا کی مشورت کو جانتا ہے اور کون سمجھتا ہے کہ خداوند کی مرضی کیا ہے؟ فانی انسان کے خیالات لرزاں ہیں اور ہماری مصلحتیں غیر یقینی ہیں، اس لیے کہ فاسد جسم روح پر گراں ہے اور خاکی مسکن تفکر کی عقل کو دباتا ہے، اور ہم محنت سے زمینی چیزوں کا قیاس کرتے ہیں اور کوشش سے اپنے سامنے کی باتوں کو سمجھتے ہیں، مگر جو کچھ آسمان میں ہے اس کی بابت ہمیں کون اطلاع دے گا اور کون تیری مشورت کو جانے گا؟ اگر تو حکمت نہ دے اور اپنی قدوس روح بلندیوں سے نہ بھیجے، اسی طرح زمین کے باشندوں کی راہیں درست کی گئی اور آدمیوں نے سیکھ لیا کہ تجھے کیا مقبول ہے، اور انہوں نے حکمت ہی کے ذریعہ سے نجات پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کے بندے۔
آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلمون کے نام، پہلا باب 9 آیت 9 سے 10 اور 12 سے 17 آیات۔ اے پیارے ہم خدمت، میں پالوس لکھ رہا ہوں جو اب ضعیف بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہوں۔ مائک میں بول۔ اپنے اس فرزند کی بابت جو قید کی حالت میں مجھے حاصل ہوا، یعنی اونیسمس کی بابت عرض کرتا ہوں، میں اسے اپنا جگر جان کر تیرے پاس واپس بھیجتا ہوں۔ میں چاہتا تو تھا کہ اسے اپنے ہی پاس رکھوں تاکہ تیری طرف سے انجیل کی زنجیروں میں میری خدمت کرے، مگر تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام مجبوری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو۔ وہ شاید تجھ سے اسی لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا رہا کہ تو ہمیشہ کے واسطے اسے پھر حاصل کرے، اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بڑھ کر اسے بھائی کی طرح، جو خصوصاً مجھے اور کتنا ہی تجھے زیادہ عزیز ہے، جسم کی راہ سے بھی اور خداوند میں بھی۔ پس اگر تو مجھے رفیق جانتا ہے تو اس کو ایسے قبول کر جیسے مجھ کو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 14واں باب 25 تا 33 آیات۔ ایک دن ایک بڑا ہجوم یسوع کے ہمراہ جا رہا، تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب یوں رکھے اور تیار نہ کر سکے تو جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگے اور کہے کہ اس شخص نے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے جانے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چلا آتا ہے۔ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے تو قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سب کی طرف چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے عبادت کے تعارف میں اس بات کا ذکر سنا کہ آج کا جو کلام ہے اس کا جو عنوان یا موضوع وہ خداوند یسوع مسیح کی شاگردی کے تقاضے، شرائط، یا پھر خداوند یسوع مسیح کی جو شاگردیت ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ یسوع کی جو شاگردیت ہے اس کی قیمت کیا ہے،
उसका जिक्र, यानी जो कीमत है उसका जिक्र बयान किया गया है, उसका जिक्र जो है वो किया गया है। आज के इस मैसेज का आगाज यीशु मसीह की छोटी सी तमसील और एक दुनियावी मिसाल से मैं करना चाहूँगा। अगर आपने गौर किया तो जो शराइत, जो तकाज़े यीशु की शागिर्दी के बयान किए गए हैं, जो कीमत एक शागिर्द को, एक उसके पैरोकार को चुकाना पड़ती है, उस कीमत पे जब हम आज के कलाम की रूह से गौर करते हैं तो वो बड़ी भारी कीमत हमें लगती है। शराइत बड़ी मुश्किल लगती है, बड़ी जो है वो ऐसा है कि शायद कोई एक इंसान है वो इनको पूरा नहीं कर सकता। ये जो तकाज़े हैं यीशु के पैरोकार होने के, या यीशु के शागिर्द होने के, या यीशु की शागिर्दियत की जो कीमत आज का कलाम बयान करता है, शायद वो हम पे नहीं कर सकते और शायद उसके शागिर्द नहीं बन सकते। तो ऐसा लगता है। तो मैं एक छोटी सी मिसाल, दुनियावी मिसाल से और यीशु मसीह की एक छोटी सी तमसील से जो मत्ती रसूल के इंजील में है, उससे जो है मैं आगाज करूंगा। मिसाल के तौर पे आप दुकान पे जाते हैं और आपको दुकान में बड़ी कीमती चीज नजर आ जाती है और फिर आपको लेना चाहते हैं। तो जो अक्लमंद ग्राहक होगा वो क्या करेगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं या आप सोच भी सकते हैं कि कीमत बड़ी जो है चीज बड़ी कीमती है, बड़ी अहम चीज है, बड़ी कीमती चीज है, तो वो उसे लेना चाहता है तो क्या करेगा? उसकी कोशिश होगी कि वो कीमत की परवाह नहीं करेगा। अगर अक्लमंद होगा तो वो कीमत की परवाह नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं भाई, कीमत अपनी मर्जी की लगा दो, ये चीज मैंने लेनी ही लेनी है क्योंकि ये चीज बड़ी कीमती है, ये चीज बड़ी अहम है। तो वो उस चीज को खरीदेगा। अगर अक्लमंद होगा तो वो कीमत की बहस में नहीं पड़ेगा कि भाई कीमत बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, कहां से लूंगा। तो वो जैसे तैसे उसको लेगा, वो कीमत की परवाह नहीं करेगा। या फिर जो यीशु मसीह की तमसील है मत्ती रसूल के इंजील में, कीमती मोती की, बेशबहा कीमती मोती, उसकी तमसील है। एक शख्स है, किसी के खेत में वो काम करता है और क्या होता है कि जब वो खेत में काम कर रहा होता है तो उसे कीमती मोती वहां से मिलता है। जब उसे कीमती मोती मिलता है तो क्या करता है? वो जाता है अपने घर, अपना सब कुछ बेच डालता है, अपना सब कुछ बेच डालता है और वो उस खेत को खरीद लेता। शायद उसने अपना घर भी बेच दिया, जो जेवरात होंगे वो भी बेच लिए होंगे और जो कीमती चीजें होंगी वो भी बेच दी होंगी। लेकिन वो घर जाता है, सब कुछ बेच के वो उस खेत को खरीद लेता है। और वजह क्या है? क्योंकि उस खेत में एक कीमती मोती जो है वो मौजूद है। तो मेरे से जो ये दो बातें करने का मकसद मेरा ये है कि जो यीशु की शागिर्दियत की कीमत वो बेशक थोड़ी सी भारी है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस कीमत के बदले में जो चीज आपको मिलेगी वो लाजवाब है, वो बेशबहा कीमती है। और वो है यीशु मसीह की शागिर्दी, यीशु का पैरोकार होना और यीशु के शागिर्द और यीशु के पैरोकार होने से जो नेमतें, बरकतें और फसाए जुड़े हुए हैं, ये एक अलग टॉपिक है, उनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो यीशु की शागिर्दियत है, जो यीशु का पैरोकार होना है, ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ बेशुमार और काम और फसाए जुड़े हुए हैं। जो यीशु का हकीकी शागिर्द है, कलाम कहता है कि वो नजात और हमेशा की जिंदगी से वो दूर नहीं है। तो इससे बड़ा और क्या? तो इसलिए मेरे चीजों, बेशक ये जो कीमत है थोड़ी सी मुश्किल भी है, ये कीमत जो शागिर्दी की कीमत है ये थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन हमें इसको पे करना है क्योंकि इस कीमत के बदले में जो चीज हमें मिलेगी वो यीशु का साथ है, हमेशा की जिंदगी है, नजात। तो आए शागिर्दी के जो तकाज़े हैं, शागिर्दी की जो कीमत है, आज के कलाम की रूह से हम उस पर गौर करें। जो शराइत या तकाज़े जो बयान किए गए, जो कीमत बयान की गई है, कि यीशु ने क्यों बयान की? क्यों यीशु ने इस शराइत में कि
कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो ये करे, जो मेरा शागिर्द बनना चाहता है वो ये करे। चलिए इंजील मुकद्दस का थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बताता हूँ ताकि हमें ज्यादा समझ आ सके। यीशु जा रहा है और यीशु मसीह के साथ एक हजूम है जो दावेदार है कि हम यीशु के पैरोकार हैं, जो दावेदार है कि हम यीशु के पैरोकार हैं, हम यीशु के शागिर्द हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो लेने का मकसद ये नहीं होता कि वो यीशु के सच्चे पैरोकार हैं, हकीकी शागिर्द हैं। आप दुनियावी तौर पे देखें कि जो हमारे दुनियावी इकराम हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ साथ होते हैं, फोटो सेशंस भी करवाते हैं। मकसद क्या होता है कि इस लीडर की वजह से लोग मुझे जाने, मैं लोगों में मकबूल हो जाऊं। इस वजह से वो उस लीडर के साथ साथ होते हैं, जहां भी वो जाते हैं कोशिश करते हैं कि वो आगे आगे होकर लीडर के साथ रहें, ताकि पता चले भाई ये इसका बंदा है और लोगों में वो मकबूल हो जाए, लोग उसकी इज्जत करें। बेशक वो दिल से उसका पैरोकार या उसका शागिर्द है या नहीं, ये अलग बात है। वो अपनी मकबूलियत के लिए, अपने आप को बनाने के लिए वो उस लीडर के साथ है। और इस हजूम में भी यही था, इस हजूम में भी यही था। बेशुमार लोग थे लेकिन वो सारे यीशु के हकीकी पैरोकार नहीं थे। तो हकीकी पैरोकार कौन है, इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए यीशु शराइत रखता है कि भाई मेरा शागिर्द वही है जो ये कीमत चुकाएगा, जो इन तकाज़ों को पूरा करेगा, जो इन शराइत पे पूरा करेगा। और फिर यीशु ने वो शराइत जो है वो बयान की। तो शराइत का बयान करने का, कीमत बयान करने का, तकाज़े बयान करने का मकसद क्या है कि जो हकीकी शागिर्द है उनको जांचा जाए, उनको देखा जाए कि कौन है। जो बड़े नाम है वो एक साइड पे हो गए, यीशु को पता है। तो जो तकाज़ों पे पूरा उतरेगा, जो शराइत को पूरा करेगा, जो सही कीमत चुकाएगा, वही यीशु का हकीकी शागिर्द होगा। तो इस वजह से यीशु ने ये शराइत जो बड़ी मुश्किल से है, ये यीशु ने शराइत पेश की। मेरे से तो याद रखिए, यीशु अट्रैक्शन पैदा करता है, लुभाता जरूर है। ये फिक्र आपने गौर से सुना है कि यीशु जो है वो अट्रैक्शन पैदा करता है। यानी जब वो लोगों को आंखें देता है तो यकीनन लोग मुतवज्जे होते हैं, भाई क्या बंदा है। लंगड़ों को चलाता है तो लोगों में अट्रैक्शन पैदा होती है, मुर्दों को जिंदा करता है तो अट्रैक्शन पैदा होती है। इसके साथ साथ 5000 को खाना खिलाता है तो अट्रैक्शन पैदा होती है। यानी यीशु लोगों को अट्रैक्ट करता है, लुभाता जरूर है, लेकिन लुभाने के बाद उन्हें वो छांटता और पटकता भी है। छांटता और पटकता भी है। छांटने और पटकने का अमल क्या है? शायद पुराने वक्तों के जो लोग हैं वो जानते होंगे कि जब पीन किया जाता था गर्दन का, तो छाछ में पटका भी जाता था, छांटा भी जाता था। मकसद क्या होता था कि गंदे दाने में साइड पे हो जाए। तो यीशु लुभाता जरूर है लेकिन छांटता और पटकता भी। अब यहाँ पे यही अमल हो रहा है। ये जो तकाज़े बयान किए गए हैं, ये जो कीमत बयान यीशु कर रहे हैं, जो शराइत यीशु पेश कर रहे हैं, हकीकत में ये छांटने का और पटकने का अमल है, पटकने का अमल है, ताकि खालिस और ना खालिस अलग हो जाए। जो खालिस है मैं उनको जान लूं, वो मेरे पीछे आ गई, और जो ना खालिस है वो साइड पे हो जाए। तो ये इंजील मुकद्दस का पस मंजर। तो भी आए जरा उस कीमत पे, उन शराइत पे और उन तकाज़ों पे जो आज यीशु ने अपने हकीकी शागिर्दों के लिए पेश किए हैं। तो जो सबसे पहला तकाज़ा है, सबसे पहला तकाज़ा यीशु क्या कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपनी माँ को, बाप को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बीवी को, सबको छोड़े और मेरे पीछे हो। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि वो यीशु जब इंतहाई तकलीफ की हालत में, उसका पूरा जिस्म एक जख्म बना हुआ है और जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं कि जहां से खून ना बस रहा हो, सलीब में है और सर में भारी कीलों का ताज जो है वो दबाया जा चुका है। इतनी इंतहाई तकलीफ में है लेकिन अपनी मां के हवाले से जिम्मेदारी को नहीं भूलता। क्या कहता है? प्यारे शागिर्द पे एतमाद करते हुए कहता है कि ये तेरी आज से मां है, और मां से कहता है कि ये तेरा बेटा है। अब वो यीशु जो इंतहाई दुख और कर्ब की हालत में भी अपने हज़रत यूसुफ उस वक्त नहीं थे तो वो होते थे, उनकी वो फिक्र करता है।
तो वो यीशु जो अपने माँ बाप की इतनी तकलीफ और दुख की हालत में भी परवाह करता है, फिक्र करता है, वो कैसे कह सकता कि भाई जो मेरे पीछे आ रहा था वो अपनी माँ बाप को भी छोड़ दे, बहन भाइयों को छोड़ दे, बच्चों को भी छोड़ दे। तो मतलब क्या है, पीछे बात कोई और है। मतलब यह है कि पीछे बात कोई और है। बात क्या है? यहाँ पे बात है यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की, पहला दर्जा देने की, पहले नंबर पर रखने की। यानी यीशु की मोहब्बत के आगे बाकी तमाम मोहब्बतें नाचीज हैं। एक यीशु की मोहब्बत सबसे पहले है, चाहे वो बाप की हो, चाहे वो माँ की हो, चाहे बीवी बच्चों की हो, चाहे बहनों भाइयों की हो, यीशु की मोहब्बत और यीशु पहले नंबर पे है। यहाँ पे यीशु का मतलब ये है, वो कभी तो ये नहीं कह रहा कभी मेरे पीछे आना है, मेरी शागिर्द बनना है, तो आप जो है वो अपने माँ बाप को भी छोड़ दो, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और किसी की परवाह ना करो। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मकसद ये है कि अगर आप यीशु के हकीकी शागिर्द बनना चाहते हैं तो आपने अपनी जिंदगी में पहली तरजीह यीशु मसीह को देनी है। यीशु की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों से पहले नंबर पे होनी चाहिए। अभी दूसरे नंबर पे जो शर्त है, एक ही लाइन में 3 शर्तें यीशु ने बयान की और कुछ बातें बाद में हैं। आगे वो क्या कहता है कि जो अपनी जान से कीना ना रखे, जो अपनी जान से कीना ना रखे वो मेरा शागिर्द। ये जान से कीना, कीने का मतलब दुश्मनी, जो अपनी जान से दुश्मनी ना रखे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और ये दूसरी शर्त भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अहम है। यहाँ पे साथ की बात आ गई है, साथ की बात आ गई है। अगर यही हवाला, वो सुनिएगा, यही हवाला अगर आप मत्ती रसूल की इंजील में पढ़े तो मत्ती रसूल वहां पे जान से कीना रखने की बजाय एक और लफ्ज इस्तेमाल करता है, और वो लफ्ज क्या है? खुद इनकार, कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए, खुद इनकारी करे और मेरे पीछे हो जाए। ये मत्ती रसूल की इंजील में है। आज का हवाला जो है ये लूका रसूल की इंजील में सीखा। तो बात एक ही है, अपनी जान से कीना रखना और खुद इनकारी करना, क्योंकि साथ की बात है, खुद की बात है। तो अपनी जान से दुश्मनी रखना, या आप सिंपली ये कह लीजिए कि खुद इनकारी करना, खुद इनकारी करना, खुद इनकारी करना। तो मेरे से ये खुद इनकारी है क्या? आपने ये लफ्ज बेशुमार दफा सुना होगा। खुद इनकारी है क्या? खुद इनकारी का मतलब यह है कि हर उस चीज का यीशु की खातिर इनकार करना जिसका ताल्लुक खुद से है, मेरी सांस से। चाहे वो जान है, जिस तरह आज की तिलावत में है कि जो अपनी जान से कीना न रखेगा, चाहे वो जान है, चाहे कोई दुनियावी और चीज है जिसका ताल्लुक हमारी सांस से है, खुद से। तो खुद इनकारी का मतलब यह है कि हर उस चीज का इनकार करना जिसका ताल्लुक खुद से है, हमारी सांस से है। तो मेरे शिशु इसकी मैं दो मिसालें इसको समझाने के लिए आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले यीशु मसीह की मिसाल। यीशु मसीह ने खुद इनकारी का खूबसूरत नमूना हमारे सामने पेश किया। यूहन्ना रसूल उसको बयान करते हैं 6 बाब की 38 आयत में। वो कहते हैं कि यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि अपनी मर्जी पूरी करूं, बल्कि उसकी मर्जी को पूरा करूं जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी पूरी नहीं की, और अपनी मर्जी पूरी ना करना ये खुद इनकारी की खूबसूरत एग्जाम्पल और मिसाल कि यीशु मसीह ने वाकई, फिर आप देख लीजिए उसकी पोजीशन की, उसने वाकई अपनी मर्जी नहीं पूरी की। उसने 10वीं बात में क्या कहा? थोड़ी सी अपनी मर्जी की झलक जरूर दिखाई, क्या बात अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, ये अपनी मर्जी की छोटी सी झलक नजर आती है। लेकिन बाद में क्या कहते हैं, नहीं यार खुदा, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा, मेरी भी बात है, तेरी मर्जी पूरी हो। तो यीशु मसीह की पूरी जिंदगी खुद इनकारी का खूबसूरत सबूत है, खूबसूरत मिसाल है। इसके साथ साथ फिलिपियों के नाम पर दूसरे बाब में अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, क्योंकि उसने खुदा की साथ में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना और अपने आप को खाली कर दिया। खुदा के लिए मकसूदा नजात में उसने खाली कर दिया अपने आप को, और अपने आप को खाली कर देना ये खुद इनकारी की खूबसूरत मिसाल है। अपने आप को खाली नहीं, अपने आप को मार देना। ये कोई बात ना कि यूहन्ना कहता है कि मैं भरपूर तू
बढ़े, मैं झुक जाऊं और तू नजर आए, ये खुदइनकारी है। तो ये दूसरी शर्त है, दूसरा तकाजा है जो आज के कलाम में। और तीसरा तकाजा बड़ा मशहूर, जो अपनी सलीब ना उठाए वो मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो मेरा शागिर्द, मेरा पैर नहीं हो सकता। सलीब उठाए, अभी सलीब, ये सामने सलीब आपको लगी हुई है, जरा जैसे ही सलीब पे आपकी नजर जाएगी, देख के जरा आप देखें सलीब की तरफ, जैसे ही आपकी नजर जाएगी तो क्या मनासर आपके ज़हन में आएगा? जब आप सलीब पे सच्चे दिल से गौर करेंगे तो यकीनन आपको यीशु को है कलवरी पे जाता हुआ गिरता और समर्पण नजर आए। जब आप सलीब पे नजर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यीशु किस तरह थप्पड़ खा रहा है। जब आप सलीब पे नजर करेंगे तो आपको नजर आएगा किस तरह यीशु के मुंह पे थूका जा रहा है। आप सलीब पे नजर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस असियत से वो बर्दाश्त कर रहे हैं कि उसके हाथों और पांव में कील ठोके जा रहे हैं। जब सलीब पे नजर करेंगे तो आपको ये महसूस होगा, आप फील करेंगे कि किस तरह खुदा यीशु सलीब पे तड़प रहा है। तो मतलब क्या है? सलीब नाम है दुखों का, मुसीबतों का, असियतों का, तकलीफों जो हम यीशु के लिए सहते हैं। हम जो तकलीफें, जो मुसीबतें यीशु के लिए सहते हैं वो सलीब है। और यहाँ पे यीशु जो कहता है कि जो अपनी सलीब ना उठाए, मतलब ये है कि जो मेरी खातर, कलाम की खातर, खुदा की खातर दुख ना सहे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। लेकिन अलमिया पता क्या है? थोड़ी सी कड़वी बात है। अलमिया ये है कि हम सिर्फ सलीबें पहनने वाले हैं, सलीबें उठाने वाले बहुत कम हैं। तो यीशु मसीह की शागिर्दी का तकाजा ये है, यीशु मसीह की शागिर्दी की कीमत ये है कि हम खुदइनकारी करें, हम यीशु मसीह को पहली तरजीह दें, हम यीशु मसीह की खातर दुख और तकलीफें बर्दाश्त करें, तो तब हम यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द बन सकते हैं। और मेरे से जो आखिरी बात मैं आपसे शेयर करूंगा, आखिरी बात आपसे शेयर करते हुए आपके सामने रखूंगा, ये दो तमसीलें यीशु ने बयान की। कौन कौन सी बात की कि जब कोई मकान बनाने लगता है तो वो तसर्रुफ का हिसाब पहले लगा लेता है, खर्चे का। ऐसा ना हो कि मैं मकान शुरू किया है तो खर्चा पूरा नहीं, अनकम्प्लीट रहे तो लोग हमसे, ये तमसील है, जंग की तमसील है। वो बादशाह जब किसी पे जंग करता है तो वो अपनी कुव्वत का अंदाजा लगाता है कि मेरे पास 2000 है, आपके पास 10,000 है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं और मुझे सुलह का परचम लहराना पड़े और लोग मुझ पे हंसे। ये दो तमसीलें हैं। इन दो तमसीलों का मकसद क्या है? याद रखिए, इन दो तमसीलों का मकसद यह है कि लाजम है कि उसके पीछे चलने से पहले ईमानदार उसके पीछे चलने की कीमत का दावा लगा दे, कीमत का अंदाजा लगा दे कि ये कीमत है, उसको सामने रख के देखे कि मैंने चलना है या नहीं चलना। यीशु के पीछे अगर चलना है तो कीमत ये है, इसका अंदाजा लगा लीजिए, इसको अपने ज़हन में रख लीजिए कि ये करना पड़ेगा, ऐसा होगा, तो तभी यीशु के पैरोकार और यीशु के शागिर्द बनेंगे। और आखिरी बात, आखिरी आयत, आज की तिलावत की आखिरी आयत जो बड़ी मुश्किल आयत है कि जो कोई अपना सब कुछ तलब ना करते वो मेरे पीछे नहीं हो सकता, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। याद रखें, हर इंसान अपना भला करता है जो यीशु की खातिर सब कुछ तलब करता है। वो बेहतरीन सौदा करता है कि इस दुनिया के चंद सालों में सलीब उठाता है और आइंदा जहां में वो हमेशा की जिंदगी पाता है। एक और अलग की बात कि हम उस दौलत के पीछे लगे हैं, हासिल करने की कोशिश में है जो कब्र का है, और एक दौलत जो कब्र के बाद है, उस दौलत को हम पाने की कोशिश भी करते हैं। और वो दौलत है निजात की दौलत, फजल की दौलत और जलाल की दौलत। वो कब्र के बाद हम इस दौलत जो कब्र तक, इस दौलत के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन जो कायम रहने वाली दौलत है, जो जलाल, फजल और निजात की दौलत है, जो कब्र के बाद है, हम उसके पीछे नहीं जाते। ये दौलत हमें कब मिलेगी? जब हम शागिर्दी के तकाज़े पूरे करेंगे और शागिर्दी की कीमत अदा करेंगे। फिर मैं शुरू में जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि ये घाटे का सौदा नहीं है, ये कीमती मोती है, ये कीमती मोती है। कीमत अदा करके कीमत की परवाह न करें,
कीमत के बारे में ना सोचें। ये कीमती मोती है, जलाल की दौलत है, फसल की दौलत है, इसको पा लीजिए। ये यीशु के पैरोकार होने की बदौलत, हकीकी पैरोकार होने की बदौलत, हकीकी शागिर्द होने की बदौलत ये दौलत आपको मिलेगी। कीमत की परवाह ना कीजिए। जो कीमत आज मैंने आपके सामने रखी है, इस कीमत को पे कीजिए और जो दौलत आपको मिलेगी वो बेशबहा कीमती मोतियों से बढ़ के है। तो खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। उसी खुदा को है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदा है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा और हमारी मरियम से पैदा हुआ। उसके पैर को उसके अंदर उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और सदमे उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जीता, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से उस जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूं रूह कुदस पर, पाक या कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आज हम दूसरा पर दुआ करते हैं। आजमाइश के लिए खुदा बरकत दे, ईमान को मजबूत करे, ताकि हम यीशु मसीह की शागिर्दी को तकाजा पूरा करते हुए उसके खालस और अच्छे शागिर्द ठहर सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें एक बार फिर यूनुस और नुसरत के ख़ानदान के लिए, सनी और आसिया के ख़ानदान के लिए। खुदा इन ख़ानदानों को बरकत दे, हर तरह से इनको फास में रखे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। खान बहादुर और शाहिद अफजल के ख़ानदानों के लिए दुआ करें, कारोबार के लिए दुआ करें। खुदा ने कारोबार में मज़ीद इजाफा करे और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। एक बार फिर नज़ीरा सरदार की रूह के लिए दुआ करें कि जो खुदा ने सो चुकी है, खुदा उसे हमेशा का आराम अता फरमाए। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। जफ़र भट्टी के लिए एक बार फिर दुआ करें। खुदा जो कि शफा का मंबा है, तो शुबे और शफा बख्शे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। आमर और शकील के लिए एक बार फिर दुआ करने के लिए कहा गया है। खुदा इन बरकत से मारामार करे, शुक्रगुजारियाँ कबूल करे और एक कारोबार बरकत डाले। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम के कारोबार के लिए खुदा जो भी रुकावटें या परेशानियां हैं उनको दूर करे, इन्हें और ज़्यादा तरक्की और सरफराजी अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। बाबू यूनुस की पूरी फैमिली के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, बुआ जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कि खुदा इनको अपनी बरकतों और अपने फजलों से मामूल करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम खुसूसी तौर पर भाई सलीम के लिए दुआ करेंगे, जो चर्च में अपनी खूबसूरत खिदमत सरअंजाम देते हैं, कि वो हमारी इबादत को अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं। भाई सलीम की इस खिदमत को खुदा कबूल फरमाए और इनके खानदान को खुदा कसरत से बरकत और फज़ाइल अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें खास तौर पर छोटे बेटे रियान के लिए, जो कि बीमार है। खुदा उसकी तमाम बीमारी को, तकलीफ को यीशु के नाम से दूर करे और उसे शिफा अता फरमाए, ताकि वो खुदा के घर में चला दे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ये तेज है, ये मुझे छोड़ने में आता और इसके लिए आसानियां पैदा करें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ मांगे। हम दुआ मांगे उन लोगों के लिए जो कि माली मुश्किलात का शिकार है, खासकर असल प्यार वालों के लिए, आसफ आदत के लिए और हनी के लिए, जो के लिए माली मुश्किलात को आसान करे, कारोबार को बढ़ाए, ताकि वो आने वाली जिंदगी में सुख
उन तमाम तारीफ के लिए भी दुआ मांगे जो भी बढ़िया काम जा रहे हैं कि खुदा खुदा उनको कुछ असरात से बचाए और जिस मकासद के लिए वो जाते हैं खुदा खुदा कामयाब करे खुदा उनको जहां तक खुदा खुदा की अता कर सके अजीज सरस के लिए दुआ मांगे उनको इस मुश्किल घड़ी में उनकी हौसला बने, जुर्रत बने और उम्मीद बने, ताकि वो रात को कबूल करते हुए खुदा के शुक्रगुजार रहें बने। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम जो अर्ज़े मिलते लेकर आए हैं अपने दिलों में लेकर खुदा के घर में बैठे हुए हैं, आए हम अपनी ज़ुबान से खुदा के हुजूर पेश करें और कुछ देर परस्तिश में जुट जाएं और परस्तिश में वक्त गुजारते हुए हम अपने दिल की बात खुदा से करें। सब आंखें बंद हो जाए, खुदा के सामने झुक जाए और खुदा जो कि मांगने वालों को देता है, खटखटाने वालों के लिए खोलता है और जो दूर से हमसे देता है, हम खुदा से बुलंद आवाज के साथ अपनी अपनी आवाज के साथ अपनी घर से खुदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं के साथ तेरे दर पे हैं, तेरी हजूरी में है कि आज हम खाली झोली वापस नहीं लौटेंगे। ऐ मेहमान खुदावन, हम खाली झोलियां लेके तो आए हैं, लेकिन तेरी बरकतों से, तेरे फजलों से, तेरी रहमतों, नेमतों, खुशियों और तेरी शिफा से अपनी झोलियों को भर के लेके जाएंगे। ऐ खुदा बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को ऐ खुदा तेरे सामने पेश करते हैं। एक एक जिंदगी को बरकत दे, एक एक जिंदगी को छू दे, एक एक जिंदगी को तुम नशा कर दे खुदावन, और एक एक जिंदगी को तो अपने जलाल से मामूल कर दे। खुदा को सुनता है, हर बात पर तेरा काम। खुदा हम जो भी अर्ज़े लेकर आए हैं, ज़िली परेशानियां खुदा, घर की परेशानियां पहले खुदा हमें दूर कर, हमारे दिलों को रूह से पाते, हमें नया कर दे, ताकि हम रूह की मकबूली के साथ जिंदगी बसर करें और तेरी शक्ल के खिलाफ को पूरा करें। मुझे छू और मेरा छू ले मेरा कर दे मसा से अपने को भर मुझे छू ले मेरा कर दे मसा से अपने को भर रूहे पार रूहे पार मुझे छू ले मेरा मसा से अपने को भर मुझे मुझको लगा सारी आवाज़ें उसको पुकारिए कि छू ले मेरा
यीशु की कुर्बात दिखा मुझको, देख पर मुझे और मुझे दे आज अपनी दया। मैं कमजोर हूँ, मुझे छोड़ने, यीशु की कुर्बात सिखा मुझको, एक मत मुझे अपने कल्बी दे आज अपनी दया मुझको, दे आज अपनी दया मुझको, मुझे छूने दया कर। आप मुझे भर देंगे, आप मेरा साथ देंगे, मेरा आप रूहे पार, रूहे पार, मुझसे हो मैं देखूं, बताऊं मैं घटता हूँ मैं और बढ़ता जाता हूँ, मुझसे मैं भेद घटता हूँ मैं बरसा मुझे छूने मेरा घर बरसा है मेरे नाम को मेरे बापू की पूरे से आज एक जमात, एक फौज, एक जिंदगी एक गुलाम रूह से भाग जाए, रूह की बारिश से नाबूद हो जाए और एक गुलाम मेरा पकड़ इनकी जिंदगी में भरे। तुम अपने लहू में खो और शिफा मेहमान खुदावन आप बीमारी को अगला चालू को देख पाओगे, अपनी इसके बंधनों को तोड़ दे और शैतान शर्मिंदा और कामयाब हो जाए। बापों की कुवत थी, बापों की ताकत थी, जब खुदा ताकि हम खुदा कुवत पाकर मसा पाकर कोई बेनाम पर से और खुदा हर तरह से अस्पताल के दर्द आगे पहले खुदा तू हमें अपनी जिंदगी में खास बरकरार बना, हमें प्यार करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा, ईमान दिखा कर, क्योंकि सिर्फ तू ही हमारा मुमकिन है। खुदा आज जिस हम तेरे सामने झुके हैं, सिर्फ बता जाते हैं हर घरेलू परेशानियों को दूर कर, ज़हनी परेशानियों को दूर कर, यीशु हमारा सहारा, अपने यीशु नाम हमारा खुदा तो बच्चों के दुनिया में और नाम बचा गया और इसके पीने से शिफा पाए, ज़हनी तौर पर शिफा और खून से बचा, उस खून से जिसमें शिफा है, उस खून से जिसके सीने से हमें जिंदगी मिली है, उस खून से जिससे हमें निजात मिली है, तो तेरे ही मार खाने से शिफा मिली है, निजात मिली है। और इसलिए हमें अपनी सलीब के नीचे रख, ताकि तेरी सलीब के नीचे रहे, तुझे ताकते रहे और वही सलीब तो तूने क्या उठाकर चलो वही हम अपने ऊपर रखें, हमारे ज़हनों को, हमारे दिलों को पाक कर, ताकि सलीब हमारा सहारा बने, आसरा बने और तेरा कफ्ता वाला है हमारे लिए निजात का सबब बने। बारिक हो खुदा को हमें सलीब के नीचे रख लहू के नीचे। आइए अभी खुदा की प्रस्तुत करेंगे और अपने हाथों से खुदा की तमजीद भी कीजिए, रिदम के साथ तालियां बजाते हुए खुदा की मदद करेंगे। यही दुआ है खुदा लहू के नीचे रख। अभी भी तालियों की आवाज कम है, खुदा के नाम को जला दीजिए। हालेलुया।
لہو کی معاملہ شریف کے خواہش کیا یسوع کے پیچھے پبلک گیا یسوع کے پیچھے یہی ہے وعدہ یسوع کا چہرہ دیکھ محبت سے بھرا ہو بنا دے تیرا لہو یہ قدرت کا ہوا ہے لہو یہ خدا کی مسیحا ہے لہو یہ ہوا کا ہے لہو یہ خدا کی مسیحا کا ہے لہو یہ پوتر یہوہ کا ہے اس کا نام رام مسیحا کا ہے لہو میں ہی شکتی مسیح کا مسئلہ ہے لہو میں ہی شکتی مسیح کا مسئلہ ہے خدا کے رکھ لہو کے لہو کے پیچھے یسوع کے پیچھے پوتر یسوع کے پیچھے نہیں ہے آدمی یسوع کا چہرہ دیکھ محبت سے بھرا ہو خدا کا چہرہ دیکھ لہو کے پیچھے لہو کی گناہوں کو دیتا مٹا لہو کی دیواروں کو دیتا چھپا لہو کی ہوا سے دیتا ملا لہو کی گناہوں کو دیتا مٹا لہو کی دیواروں کو دیتا چھپا لہو کی گناہوں کو دیتا مٹا لہو کی دیواروں کو دیتا چھپا لہو کی ہوا سے دیتا ملا لہو کی ہوا سے دیتا ملا خدا کے بدلے رکھ لہو کے لہو کی بخشش لہو کے خلاف بات نہ بولو جنہوں نے اپنے داخل میں بڑے لہو یسوع کے پیچھے یہی ہے آدمی یسوع کا چہرہ دیکھ محبت سے بھرا ہو خدا کا چہرہ دیکھ تالیوں کے ساتھ مقبول تالیوں سے پروپس کیجیے لہو کو پکارے لہو کی قدرت لہو کی حفاظت میں چلتے چلے لہو سے محبت کی کلیاں کھلے لہو کو پکارے لہو میں ڈوبے لہو کی حفاظت میں چلتے چلے لہو کو پکارے لہو میں ڈوبے لہو کی حفاظت میں چلتے چلے لہو سے محبت کے کلیاں کھلے لہو سے محبت کے کلیاں کھلے خدا کے یسوع آپ کو پورا آیا یسوع برکت دے رہا لہو کے پیچھے یسوع کے پیچھے یسوع کے پیچھے یہی ہے آدمی یسوع کا چہرہ دیکھ محبت سے بھرا ہو خدا کا چہرہ دیکھ لہو کے پیچھے لہو کے پیچھے لہو کے پیچھے یسوع کے پیچھے پوتر یسوع کے پیچھے یہی ہے آدمی یسوع کا چہرہ دیکھ محبت سے بھرا ہو خدا کا چہرہ دیکھ لہو کے خدا آپ کو قبول کیجیے آپ کے شدید کے خدا مہربان جسموں سے
सारी बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां का Yes. तो जिंदगी का खुदा है। खुदा इसलिए आया है जिंदगी पर वो जिंदगी जो काम करती है खुदा खत्म करते हैं और हमें सच्चे खालिस पैरोकार बना, हमें सलीब उठाना सिखा, हमें सलीब पे उठाने का हौसला दे, जुर्रत दे, ताकत दे, पाक मोहब्बत दे। हम सलीब उठाकर तेरी पैरवी करते जाए और तेरे कदमों के पीछे चलते चलते तेरे खालिस शक्ल पर चले। इसी खुदा आमीन। सभी तशरीफ रखिए। हमें अभी हम नजराने का गीत अजीज़ों दुआ कारज मुझसे बाप के हज़ूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ निहायत रहीम खुदा की कीदत और दिली इत्मीनान तो ही से आता है। बख्श दे कि हम ये हदिया लाकर मुनासिब तौर पर तेरी अजमत की इज्जत करें और पाक की बात में शरीक होकर तेरे साथ और आपस में एक होने के साथ की तकवीत पाए। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नायत मुनासिब उस बाप तुम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तुझ ही में हम हयात हरकत और हस्ती रखते हैं और इस बदन में रहकर ना सिर्फ हर रोज तेरी शफकत को महसूस करते हैं बल्कि जिंदगी की जमानत भी यकीनी जानते हैं, क्योंकि हम उस रूह के पहले फल पाकर जिसने खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया
یہ پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے پاشتا کا بھید ایک دائمی بھید ہی ہوگا۔ اسی سبب سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری صفت سے بیان کرتے ہیں۔ اے مہربان باپ، واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تو چیز سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر پاک رکھ بیچ تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس دکھلانے کے تیار ہو کر اپنے آپ کی کھانے کے موقع پر اٹھی لی، اسے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے، کہ تمہارے بلکہ بہت سے لوگ گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ پس اب باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کی یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پہلا تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخشتے مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا کی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ میں روحانی باپ پوپ لیو 14واں، ہمارے بشپ صاحبان اور اپنے سب خادموں کو یاد کر، حاضر جماعت کے ساتھ ہو۔ تیری کلیسیا تمام دنیا پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں پر نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام روحوں کو یاد کر ان کا روشنی قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں اقواری مریم، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ کہ جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹی یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ ہم اپنے جاتے میں ہدایت پا کر پورے ایمان بھروسے کے ساتھ اس طریقے سے دعا کریں جس طرح خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کو پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ امن، صلح اور سلامتی کی دعا کریں، سلامتی اپنے گھرانوں کی، سلامتی اپنے ملک کی۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں آپ کی سلامتی میں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ کلیسیا کے مال پر نظر کر اس سے وہ سلامت حال بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ پر ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔
हमारे खुदा इस मसीह के पाक बदन को बुलाया जाना पाक शर्त मिशन बुलाया आए खुदा के बने हम पर रहम कर है खुदा के बने कि जहां की गुनाह को उठाया जाता है हम पर रहम कर है खुदा के बने कि जहां की गुनाह को उठाया जाता है हमें सलाम की अनायत कर यह खुदा का बड़ा मसीह खुदा जहाँ का नाम उठाया जाता है मुबारक हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए मसीह का बदन को उन्होंने शक्ल दी
तेरा रब बनेगा तेरा रब बनेगा दीदार दे मिलते मुनार मिलते हैं भूखे तेरा दीदार दे मिलते मुनार मिलते हैं भूखे तेरा बड़े गौर से और बड़ी संजीदगी से आप सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं याद करना चाहूँगा कि हमारी हफ्तावार इबादतें हैं जो चर्च में होती हैं उनकी टाइमिंग्स के हवाले से। तो सबसे पहले जिस तरह के आज संडे है तो इतवार की इबादत 10 बजे रोजरी और 10:30 बजे पाक का आगाज होता है। इसके साथ ही फिर मंगल की इबादत आती है जिसमें हम मुकद्दस एंथनी के नवीने की दुआ करते हैं और मुकद्दस एंथनी से सिफारिशात चाहते हैं। तो मंगल की जो पाकमास है 5 बजे रोजरी की इबादत के साथ उसका आगाज होता है। इतवार और मंगल के अलावा हर रोज सुबह 7 बजे आपके लिए पाकमास का एहतमाम किया जाता है। पिछले हफ्ते में बारिशों की वजह से सुबह के वक्त पाकमास नहीं हो सकी 1 या 2 दिन, तो अभी चूँकि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है तो आइंदा से बिल्कुल वही रूटीन होगी कि हर रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो पाकमास जो है हुआ करेगी और आपके पास मौका होगा कि आप अपने दिन का आगाज़ खुदा के नाम से किया करेंगे। इसके साथ ही सितंबर है और अगला महीना अक्टूबर का महीना है जिसको हम मसला मरियम के नाम से मशहूर करते हैं, जिसमें रोज़ी की इबादत होती है, ताजपोशी की इबादत होती है। आपको पता है कि हम भी ताजपोशी की इबादत बड़ी धूमधाम से यहाँ पे करते हैं। तो कल हमारी मीटिंग थी पैरिश हाउस में, तो मीटिंग में तमाम मुनासिबात थे। तो वहाँ पे जो डेट डिसाइड हुई है 31 अक्टूबर जुमे का दिन होगा। तो 31 अक्टूबर जुमे का दिन शाम 5 बजे का वक्त है। तो ये थोड़ा सा अर्ली इसलिए हमने अनाउंसमेंट शुरू कर दी है कि आप बेहतर तौर पर तैयारी भी कर सकें और दूसरे लोगों को भी आप बता सकें। ना सिर्फ ये ऐलान आपने अपने तक रखना है, इस ऐलान को दूसरे लोगों तक भी आपने पहुँचाना है ताकि हम बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी और मसरत के साथ, बड़े ईमानी जज्बे के साथ जो है वो ताजपोशी की इबादत कर सकें। इसके साथ ही बड़ा अहम आपको दे देता हूँ कि भाई स्ट्रीम बड़ी खूबसूरत खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे बात हम देखते हैं कि शायद जितनी भी इबादत जो हमारे चर्च में होते हैं ये यूट्यूब चैनल है वहाँ भी अपलोड करते हैं। और मैंने तो काफ़ी जो मेरे पिछले इलाके के लोग थे उनको जो है वो आईडी दी है कि आप इस आईडी पे जो है वो इस चैनल पे हमारे यहाँ की इबादत देख सकते हैं। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है चर्च प्रे टाइम, इसको आप जरूर जो है वो अपने आईडी में शामिल करें और इसको दूसरों तक भी पहुँचाएं। अपनी स्लीव उठाए और मेरे पीछे बोले, हम दुआ मांगे। ऐ खुदा तो अपने कलाम और आसमानी साक्रामेंट दोनों से अपने ईमान लाने वालों की परवरिश करता और जिंदगी बख्शता है। हमें यह नायत कर कि तेरे प्यारे बेटे की इतनी बड़ी नेमतों से फायदा उठाए और हमेशा हर बात में उसकी जिंदगी में शरीक होने पाए। मसीह खुदा उनके वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। कार्य मुझसे खुदा बाप और बेटे और उनकी उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी इस्लाम सीधा है।